The sitting Samajwadi Party MLA from Kairana, Nahid Hassan, who had filed his nomination papers on Friday for the upcoming assembly elections in Uttar Pradesh, was arrested on Saturday and sent to judicial custody by a local court for 2 weeks in connection with a case from February last year under the Gangsters Act. Nahid Hassan and his mother, Tabassum Hassan, who is a former MP from Kairana, were named as accused in the case along with 38 others. Tabassum Hassan had got an anticipatory bail in this case. Police said that Nahid, who was absconding, had reached the Kairana court to surrender on Saturday afternoon, and the court sent him to 14 days in judicial custody. In a video doing the rounds on the social media of his arrest, Nahid Hassan is heard telling a reporter, "The truth will prevail. I will not cry like Yogi over fake cases." मैं योगी की तरह फर्जी मुकदमे में रोने वाला नहीं हूँ। विधायक जी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जीत होगी? Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav said on Twitter, FIRs on SP and allied partners, arrest of candidates and threats to the leaders of these parties are clear indications that the BJP has lost all hopes of winning in the upcoming elections. Meanwhile, the BJP opened a full-fledged attack on the Samajwadi Party over Nahid Hassan's arrest. Speaking at the Uttar Pradesh BJP headquarters in Lucknow on Sunday, Union Minister for Information and Broadcasting Anurag Thakur claimed that rioters joined the Samajwadi Party while those who catch such rioters join the ruling BJP. The real khel of Samajwadi Party is that the candidate is either in jail or on bail, the Union Minister said. If you see MLA Nahid Hassan, he is Samajwadi Party's candidate number 1. He is in jail, Thakur added. समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगइयों को पकड़ते हैं। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। और आप नाहिद हसन को देखेंगे जो उनका प्रत्याशी नंबर 1 है समाजवादी पार्टी का, वो जेल में है। उनका दूसरा एमएलए अब्दुल आजम वो बेल पर है। एक जेल में, एक बेल पर। सूची देखेंगे तो शुरुआत जेल वाले से होती है और अंत इनकी सूची का होगा तो बेल वाले पर होगा। ये जेल बेल का खेल, ये समाजवादी पार्टी का असली खेल है। आज समाज के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने स्पष्ट हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में साफ ईमानदार छवि के अधिकारी आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी में दंगा करने वाले दंगई, कईयों के खून से रंगे हुए हाथ वैसे जा रहे हैं। उनकी सूची नंबर 1, मैं तो कहता हूं सीट नंबर 1 जो है वहां पर उनके प्रत्याशी कौन? नाहिद हसन। कौन? जिन्होंने कईयों के खिलाफ दंगा करने का, आपराधिक कई मुकदमे होने का, पलायन को मजबूर करने का, इनको संरक्षण देने का काम किया है। यही फर्क साफ है। भारतीय जनता पार्टी में ईमानदार छवि के अधिकारी तो वहां पर दंगई आते हैं, यहां बेदाग आते हैं, वहां दंगे करने वाले आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। On the other hand, BJP spokesperson Ashwini Upadhyay has moved the Supreme Court seeking directions to the Election Commission of India to deregister political parties which do not disclose the criminal antecedents of candidates they field for elections. Upadhyay, a BJP leader, cited the specific example of Samajwadi Party fielding Nahid Hassan from Kairana as a candidate for the upcoming elections. Upadhyay alleged that Hassan is a notorious gangster, but Samajwadi Party neither published his criminal records in electronic, print and social media, nor the reason of his selection, which is mandatory as per the February 2020 judgment of the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपराधियों को टिकट नहीं देगी, और यदि टिकट देती है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में उसका क्रिमिनल पूरा डिटेल को, पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री पब्लिश करेगी। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर जजमेंट दिया कि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी अपराधी को टिकट नहीं देगी, अगर टिकट देगी तो कारण बताएगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में पब्लिश करेगी, और यदि पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं करती है तो इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल करेगी, पार्टी के मुखिया के खिलाफ। न तो पॉलिटिकल पार्टी ऐसी कर रही है, न तो इलेक्शन कमीशन कुछ कर रहा है। समाजवादी पार्टी ने कैराना से एक गैंगस्टर को चुनाव मैदान में उतार दिया,
न उस गैंगस्टर का क्रिमिनल डिटेल अपने ट्विटर पे पब्लिश किया, न फेसबुक पे पब्लिश किया, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पब्लिश किया, न प्रिंट मीडिया में पब्लिश किया, और इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ नहीं किया। इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है और हमने सुप्रीम कोर्ट से मांग किया है कि सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को निर्देश दे कि वो समाजवादी पार्टी के मुखिया के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करे और समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करे। अब जब तक पॉलिटिकल पार्टियों की मान्यता रद्द नहीं होगी तब तक राजनीति का अपराधीकरण कम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट लगातार जजमेंट देता रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई कठोर कार्रवाई नहीं किया है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट एक तरीके से वो अप्रभावी हो रहे हैं, इफेक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। अब आज हमने इसीलिए पीआईएल फाइल किया है और हमने मांग किया है कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हो और समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द हो।